रिएक्शन विद वाटर। लेट अस सी हाउ मैटल एंड नॉन मैटल रिएक्ट विद वाटर। लास्ट वीडियो 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਸੀ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਟਲ ਤੇ ਨॉन ਮੈਟਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਹਾਊ ਮੈਟਲ ਐਂਡ ਨॉन ਮੈਟਲ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਵਾਟਰ। ਸੋਡੀਅਮ ਮੈਟਲ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰਿਐਕਟਿਵ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਇਟ ਰਿਐਕਟ ਵਿਗਰਸਲੀ ਵਿਦ ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਵਾਟਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਿਓਰ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਕੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਕੈਰੋਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਗਰਸ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। A lot of heat is generated in the reaction. It is therefore stored in kerosene. ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੋਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 4.5 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਾਇਰ ਕੋਜ਼ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 250 ml ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਕਰ ਜਾਂ ਗਲਾਸ ਟੰਬਲਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 250 ml ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਫ ਭਰ ਲੈਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੀਸ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਪੀ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਦਾਣੇ ਜਿਹੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਲੈਣਾ। ਡਰਾਈਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਰੈਪ ਇਟ ਇਨ ਅ ਸਮਾਲ ਪੀਸ ਆਫ ਕੋਟਨ। ਕੋਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਪੁੱਟ ਦੀ ਸੋਡੀਅਮ ਪੀਸ ਰੈਪਡ ਇਨ ਦੀ ਕੋਟਨ ਇਨਟੂ ਦੀ ਬੀਕਰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ। ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਪ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦੀ ਬੀਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਪਕੜਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੈਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਪਸ ਟੱਚ ਦੀ ਬੀਕਰ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੀਕਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ। ਹੈਜ਼ ਦੀ ਬੀਕਰ ਬਿਕਮ ਹੌਟ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਗਰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੀਟ ਕੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। ਟੈਸਟ ਦੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰੈੱਡ ਐਂਡ ਬਲੂ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਹੈ। You observe that sodium reacts vigorously with water. Some other metals do not do so. ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੈਟਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ਲੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਾਇਰ ਕੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਇਰਨ ਰਿਐਕਟਸ ਵਿਦ ਵਾਟਰ ਸਲੋਲੀ। ਆਇਰਨ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰਸਟਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਲੋਹਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਦਿਖਦੇ। ਜਨਰਲੀ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਡੂ ਨੋਟ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਵਾਟਰ ਦੋ ਦੇ ਮੇ ਬੀ ਵੈਰੀ ਰਿਐਕਟਿਵ ਇਨ 에ਅਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਕੀ ਆ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ। ਸੱਚ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਆਰ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਵਾਟਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫੋਸਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰਿਐਕਟਿਵ ਨੋਨ ਮੈਟਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਆ ਅੱਗ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਸਫੋਰਸ ਆ। ਫੋਸਫੋਰਸ ਕੀ ਆ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਆ। ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਰਿਐਕਟਿਵ ਆ ਇਹ। ਇਟ ਕੈਚ ਫਾਇਰ ਇਫ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਟੂ 에ਅਰ। ਜੇ 에ਅਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਇਰ ਕੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਕੈਰੋਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਆਫ ਫੋਸਫੋਰਸ ਵਿਦ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਵਾਟਰ। ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਮੈਟਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਸੋਡੀਅਮ ਮੈਟਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਫੋਸਫੋਰਸ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਐਸਿਡਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਹਾਊ ਮੈਟਲਸ ਐਂਡ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਬਿਹੇਵ ਵਿਦ ਐਸਿਡਸ। ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 4.6 ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਪ ਦੀ ਮਾਊਥ ਆਫ ਦੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਯੂਅਰ ਫੇਸ। यूज़ टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड दी टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब होल्डर यूज़ करना जो टेस्ट ट्यूब ने पकड़ना तो टेस्ट ट्यूब का फेस अपने फेस तो दूर रखना। टेक सैंपल ऑफ मैटल्स एंड नॉन मैटल लिस्टेड इन टेबल 4.5 in separate test tube
ਐਂਡ ਲੇਬਲ ਦੈਮ ABCDEF। मतलब मैटल ते नॉन मैटल के कुछ सैंपल जोड़े दिते हुए 4.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਲੇਬਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ABCDEF with the help of a dropper. Add 5 ml of dilute hydrochloric acid to each test tube। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਨॉन ਮੈਟਲ ਹੈ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਿਡ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਆ, ਨਾਮ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਐਸਿਡ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਐਸਿਡ ਆ। टू ईच टेस्ट ट्यूब 1 by 1 5 ml पा देना हर एक टेस्ट ट्यूब के। ऑब्जर्व दी रिएक्शन केयरफुली। इफ नो रिएक्शन अकर इन दी कोल्ड सोल्यूशन, जो कोई कोल्ड सोल्यूशन आ वो कोई रिएक्शन नहीं पता लग रही तो सोल्यूशन थोड़ा जिहा हीट करके देखना। वार्म दी टेस्ट ट्यूब जेंटली। ब्रिंग अ बर्निंग मैस्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। हर एक टेस्ट ट्यूब के कोल थोड़ी जी मैस्टिक लेके आनी, बर्निंग मैस्टिक, तो देखना भी वो किस तरह की रिएक्शन शो करता। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग dilute सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर इन्होंने कहा कि कुछ होंगे भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाल रिएक्ट नहीं करते। दूसरा एक्टिव है, दूसरा एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। डिल्यूट तो कंसनट्रेटेड दो फॉर्म के होंदा। डिल्यूटेड मतलब वो थोड़ा जिहा वाटर मिक्स किया होया, कंसनट्रेटेड मतलब प्योर फॉर्म के होंदा। सल्फ्यूरिक एसिड की है प्योर फॉर्म के होवे तां कंसनट्रेटेड लिखते हैं, जो वाटर ऐड किया होंदा मतलब वाटर की रेशो बना के ऐड किया होंदा तो वो डिल्यूटेड फॉर्म के होंदा। ये दोनों टर्म कई बार लिखा होंदा डिल्यूटेड, तो वो तो पता लग जाएगा भी ये डिल्यूटेड मतलब वाटर ऐड किया होया, सल्फ्यूरिक एसिड प्योर नहीं है। रिकॉर्ड योर ऑब्जरवेशन इन टेबल 4.5। फिर वो 4.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ नोट करनी है। हम इधर मैटल नॉन मैटल है, सानू नहीं पता मैटल है कि नॉन मैटल है, इन्हां दी रिएक्शन करनी आप एसिड के नाल। लेबल कर लिया टेस्ट ट्यूब के पा के, टेस्ट ट्यूब में लेबल कर लिया ABCDEF। ए वाले दे विच इन्हां ने मैगनीशियम पाया, मैगनीशियम के रिबन। बी दे विच एलूमीनियम फॉइल। सी दे विच आयरन फिलिंग। डी दे विच कॉपर। पील्ड फ्लैक्सीबल वायर, जिहड़ी फ्लैक्सीबल वायर होंदी उत्तों दी कॉपर ले लिया, उन्होंने ऐड कर दिता। ई दे विच चारकोल, चारकोल का पाउडर पाया। एफ दे विच इन्हां ने सल्फर पाउडर पाया। हुण उन्होंने रिएक्शन की डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पहले रूम टैंपरेचर से मतलब कोल्ड सोल्यूशन के नाल, जो कोई रिएक्शन नहीं होंदी फिर थोड़ा वार्म करके पाया। इत्थे मैं पूरी रिएक्शन लिख दी, जे तो दिख रहा प्रॉपर तो अपनी बुक्स से लिख लेना, फिर भी मैं बोल के दस रही हाँ। हुण जो मैगनीशियम आ, मैगनीशियम की है जो एसिड के नाल रिएक्ट करता मैगनीशियम क्लोराइड बन जाता, प्लस हाइड्रोजन बनती है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्लोराइड कितों आया, क्लोरीन तो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे विच नॉन मैटल की है क्लोरीन, हाइड्रोजन भी हो गया, तो इस करके मैगनीशियम क्लोराइड बन गया प्लस हाइड्रोजन। उस तो बाद एलूमीनियम, एलूमीनियम क्लोराइड बन गया प्लस हाइड्रोजन। आयरन द फेरिक क्लोराइड बन गया प्लस हाइड्रोजन। मैटल का नाम लिखा, आयरन का पहला भी दसिया फेरिक, क्लोराइड है, क्लोराइड का जो सिंबल है, क्लोरीन का सिंबल होंगे C कैपिटल L स्मॉल, इस तरह होंगे। इत्थे लिख रही हूँ मैं C कैपिटल L स्मॉल, ये क्लोरीन का सिंबल है। हाइड्रोजन जी गैस लिखते हैं आप, हाइड्रोजन गैस का सिंबल होंगे H कैपिटल नीचे 2, ठीक है। एलूमीनियम का इस तरह पहले 2 लैटर होंगे A कैपिटल L स्मॉल। आयरन की जो एसिड के नाल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाल रिएक्शन होंगी तो फेरिक क्लोराइड बन जाता प्लस हाइड्रोजन। कॉपर की कोई रिएक्शन नहीं होंगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाल, चारकोल की भी कोई रिएक्शन नहीं होंगी, सल्फर की भी कोई रिएक्शन नहीं होंगी, चाहे रूम टैंपरेचर चाहे वार्म कर लें। उस तो बाद रिएक्शन विद डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सेम चीज़ां। मैगनीशियम की जो सल्फ्यूरिक एसिड का पता लग जाता सल्फर, सल्फर का सिंबल होंगे S कैपिटल। जो सल्फ्यूरिक एसिड के नाल रिएक्ट करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होंगे H2SO4। लास्ट टाइम भी दसिया सी, सल्फ्यूरिक एसिड होंगे H2S कैपिटल O कैपिटल 4, H2SO नीचे 4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। चाहे पूरा नाम लिख दो चाहे सिंबल लिख दो।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਪਲੱਸ ਸਲਫੇਟ प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है ये जो ऐसे ना रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। एलुमीनियम सल्फेट हाइड्रोजन आयरन सल्फेट आ सारे इधर रिएक्शन है, बस पहला नाम लिख के बाद सल्फेट लगा देना नाल। कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन पर इन्हां दी चारकोल दी सल्फर की कोई रिएक्शन नहीं होंदी, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ चाहे डिल्यूट आ, इन्हां दे नाल रिएक्शन नहीं होगी। उस तो बाद इज़ देयर अ डिफरेंस इन दी वे मैटल एंड नॉन मैटल रिएक्ट विद एसिड, यानी कि कोई डिफरेंस है भी मैटल ते नॉन मैटल जो एसिड दे नाल रिएक्ट करते कोई डिफरेंस है ये विच। बट कुड दी पॉप साउंड इन सम केसिस बी ड्यू टू वैन अ बर्निंग मैस्टिक इज़ ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। फिर जो बर्निंग मैस्टिक जो रिएक्शन हो रही है ट्यूब के टेस्ट ट्यूब जी वो कोल बर्निंग मैस्टिक लैके आने तो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है, पॉप जी साउंड होंदी है मतलब शिवारी साउंड होंदी है उस तरह की। जो कोई चीज़ बर्न करती है पता लग जाता भी वो हाँ रिएक्शन हो रही है, पॉप जी साउंड प्रोड्यूस होगी। तो इन्होंने कहा कि मतलब वह यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मैटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड बट मैटल रिएक्ट विद एसिड। नॉन मैटल एसिड के नाल रिएक्ट नहीं करदियाँ पर मैटल्स एसिड के नाल रिएक्ट करदियाँ तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होंदी है। और पॉप साउंड का की मतलब आ कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। जो आप मैस्टिक कोल लैके जाते सानू गैसा का पता नहीं लगता भी कि गैस निकल रही है टेस्ट ट्यूब के। जो आप मैस्टिक कोल लैके जाते तो सानू पता लग जाता भी जी पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रही है मतलब हाइड्रोजन गैस निकल रही है, नाल हाइड्रोजन गैस बन रही है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉपर किया डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाल रिएक्ट नहीं करता ईवन ऑन हीटिंग बट इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के नाल रिएक्ट करता वो नहीं करता। यदा आंसर तुसीं खुद तो फाइंड आउट करना भी वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना क्यों नहीं रिएक्ट करता, सल्फ्यूरिक एसिड ना क्यों रिएक्ट करता। उस तो बाद रिएक्शन विद बेसिस, पहला एसिड किया हुण बेस के नाल रिएक्शन। हुण एसिड बेस का पता ही होना, तुसीं 7th क्लास पढ़ चुके हैं भी एसिड किहड़े होंदे आ बेस किहड़े होंदे आ। इस एक्टिविटी दे विच इन्हां ने की कहा प्रिपेयर अ फ्रैश सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की आ बेस आ टेस्ट ट्यूब दे विच लैना बाय डिजोल्विंग 3-4 पैलेट ऑफ इट इन 5 ml वाटर। 5 ml वाटर दे विच 3-4 पैलेट्स दियां सोडियम हाइड्रोक्साइड दियां पा देनियां। फिर ड्रॉप अ पीस ऑफ एलुमीनियम फॉयल इनटू इट, एलुमीनियम का पीस थोड़ा जिहा पा देना। ब्रिंग अ बर्निंग मैस्टिक नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। एलुमीनियम की है मैटल है ना, एलुमीनियम सानूं पता ना मैटल है तो इस करके मैटल पाई है, कोई भी मैटल पा के देख सकते हैं उहदे विच। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, वो बेस के नाल आपां मैटल की रिएक्शन देखनी है। ब्रिंग अ बर्निंग मैस्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब ऑब्जर्व केयरफुली। फिर ये नाल केयरफुली ऑब्जर्व करना। पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है ये भी। पॉप साउंड की इंडिकेट कर रही है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, मतलब हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में शो करती है। जो आप बर्निंग मैस्टिक टेस्ट ट्यूब के कोल लेके जाते हैं चाहे एसिड के नाल रिएक्शन होती चाहे बेस की मैटल की, तो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। पॉप साउंड का मतलब है हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। मैटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन ऑफ नॉन मैटल विद बेसिस आर कॉम्पलैक्स। रिएक्शन ऑफ नॉन मैटल विद बेसिस आर कॉम्पलैक्स होंदी है। नॉन मैटल की थोड़ी जी कॉम्पलैक्स होंदी, रिएक्शन करते पर थोड़ी जी कॉम्पलैक्स होंदी है। इस तो बाद अपना एक लास्ट है रिएक्शन विद डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। डिसप्लेसमेंट तो यूज़ ऑफ मैटल नॉन मैटल ये नैक्सट वीडियो च देखते हैं।